किसके साथ कंपेयर करोगे? Sir, the same dermatome of the both upper lip, and I will also compare it to the first. I will check at the forehead of the how is the sensation at the forehead, and then I will check. फोरहेड में कहाँ चेक करेंगे आप? Sir, at the forehead, sir. नहीं, फोरहेड में At कहाँ the पे middle, check? at the middle. मिडिल पे क्यों? Why on the middle? Just for comparison, sir. नहीं, मिडिल में क्यों चेक करेंगे फोरहेड का? किसी और जगह चेक करेंगे आप? Sorry, sir. ओके ओके, मसूद साहब प्रोसीड करें। चलें शाकिरुल्लाह साहब, आगे फिर उसके बाद? Sir, then I will do the spine, the lumbo spine, the whole spine, I mean, of the patient, and I will do the maximum exposure as much as possible, and then I will check the lower limb. ठीक है। And in the lower limb, I will check the power tone, tone power, reflexes, and sensory examination. And then I will check the gait of my patient. अच्छा, ये बताइए, अगर कोई पेशेंट आपके साथ आता है फुट ड्रॉप के साथ, so how you will differentiate on examination कि इसको फुट ड्रॉप नर्व की वजह से, लंबर नर्व की वजह से, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से? जी सर। How you will differentiate on examination? Sir, I will do the dorsiflexion of the foot of the patient. क्या करेंगे आप? I will check the dorsiflexion of the ankle joint. ठीक है, कर लिया। फुट ड्रॉप है, फिर कैसे पता चलेगा आपको कि ये स्पाइनल रिलेटेड है या पेरिफेरल नर्व रिलेटेड है? कॉमन पेरोनियल नर्व का है या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम? Yes, sir. पता चलेगा on I will examination? check the. Yes, sir. And I will do the inversion and eversion of the patient. Okay, sir. Okay, फिर So if the patient, sir, can't do the dorsiflexion and the eversion, so this is the. This is what? This is the lumbar reticulum. अच्छा, क्यों Yes, ऐसे sir. क्यों? Because the L4, L5, sir. Because the eversion is supplied by what? By the dorsiflexion is performed by the dorsiflexion of the ankle joint is performed by the L4, and by the interior tibialis muscle. चलो ठीक है, रहने दो, ये किसी और से पूछेंगे बाद में, तुम्हें नहीं पता इसका। आगे बताओ फिर। ठीक है, एग्जामिनेशन कर लिया तुमने लोअर लिम्ब का भी? जी सर। उसके बाद क्या करोगे? और and I will make the patient to walk. I will check the walk of the patient. very good, I like that. Okay, that's fine. तो ये सारा एग्जामिनेशन हो गया। अच्छा, ये बताओ कि इसको तुमने कहा कि जी इसको डिजेनरेटिव प्रॉब्लम हो सकते हैं और ट्यूमर भी हो सकता है, ये भी तुमने कहा था, है ना? जी सर, जी। तो अगर ट्यूमर होगा तो कौन सा ट्यूमर होगा इसको सबसे ज्यादा? Sir, this is reticulum. Sir, the most common tumor that is schwannoma, renal schwannoma. तुमने इसके कुछ एग्जामिनेशन किया, ऐसे कपड़े भी उतरवा लिए सारे और ये वो कुछ तुमने बोला नहीं कि क्या देख रहे हो तुम उधर? What you will be looking for? Sir, I will check for the any spots on the body or any What spot? मच्छर के काटने के स्पॉट? No sir. फिर for neurofibromatosis, any patches. ठीक है, कैफे वाले स्पॉट क्या बोलते हैं उसको? Cape spot. ठीक है,
तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं which make you better candidate and which you make you look better than anybody else. ठीक है, मेरे ख्याल में तो और कुछ नहीं रह गया अब इसमें. अच्छा, So फिर वो मैं जी दो तीन लाल चीज साहब. पूछता हूँ. अच्छा, when you are examining the spine, so how can we differentiate कि ये degenerative है या है ना क्या neoplastic है या spinal lesion है spinal cord का या infective है. So how can we differentiate among these differential diagnoses when the patient is having cervical pain? Sir, इसमें डॉक्टर नदीम भी होंगे. tenderness at the facet joint, sir. Tenderness Facet at joint. the So facet joint. So how can you check the facet joint? यार फारिग बैठे ये देख लेते हैं अंदर. lateral to the midline to the cervical spine, to the spinous processor. नहीं, एग्जामिनेशन पे नहीं तो आप क्या हम facet joint अलग चेक करते हैं, इस तरह होता है क्या? No, sir. Only press the facet joint. और कोई चीजें हैं जिसमें we can on the basis of which we can differentiate कि यार ये तो infective pathology लग रही है या कोई degenerative लग रही है, ये ऐसी चीजें हैं. और आवाज नहीं आ रही सर बिल्कुल. Sir, most probable if there is the infectious pathology, there most probable they will have gibbous deformity. तो सर्वाइकल में आपने कितने गिब्बस डिफॉर्मिटी देखी हैं? Sir, I haven't seen in the cervical, but I have seen. फिर आप क्यों बता रहे हैं कि गिब्बस डिफॉर्मिटी है? ठीक है. अच्छा, अगर इसको आप if you are suspecting a cervical disc or pain है neck में है that is radiating to the limb, तो और भी कुछ एग्जामिनेशन करने चाहिए थे जो आपने नहीं की. Yes, sir. Some examination are important, sir. One is the shoulder abduction test, sir. Shoulder abduction test. Sorry, I have forgotten. And other is the traction, manual traction examination. कोई स्पर्लिंग साइन होता है कि नहीं? Oh, sir, I told. ये बताया था. बता दिया सर. बोला इसने. वो मैंने बता दिया. वो कैसे करेंगे? Sir, rotate the patient head to the symptomatic side and press it. If there is the pain, so this is the spurning sign. Some people can do that. They extend and rotate the neck. ठीक है. मसूद साहब फर्दर आप प्रोसीड करें. ठीक है, तो आप फिर इसको दोबारा समराइज कर दें 2 लाइनों में सिर्फ. पूरा शुरू से हिस्ट्री से लेके एग्जामिनेशन. हिस्ट्री एग्जामिनेशन आप 2 लाइन में बताएं. Sir, an examination, the patient has history. Listen to us. History examination को 2 लाइन में समराइज कर दें. Okay, sir. Sir, my patient, a 36-year-old male, complaining of neck pain and hand numbness for 3 months. And on examination, he has the cervical radiculopathy. फारूक कौन है? मरीज साहब, आपको इनको कोई कमजोरी या कोई नमनेस कहीं पे है? कमजोरी नहीं है सर, लेकिन कौन था पेशेंट? कौन था जी सर? कहाँ पे है नमनेस? कहाँ पे थी नमनेस? सर हाथों में जा रही है सर. किसी पर्टिकुलर पार्ट पे या सिर्फ सारे हाथ में है? नहीं सर, फिंगर्स में है. जो कि कौन सी फिंगर है? इंडेक्स फिंगर. इंडेक्स फिंगर में. जी सर. तो ठीक है. इंडेक्स फिंगर और थंब तक साथ में, थंब भी साथ में इन्वॉल्व है. So patient with neck pain and numbness of the thumb and index finger on examination. चलिए, तो फिर आप क्या बनी आपकी वो? C6 left side cervical radiculopathy. Left C6 radiculopathy. So how you will investigate that patient? Sir, I will do the baseline investigation and I will do the radiological investigation. अच्छा. बेसिक क्वेश्चन करता हूं. मैं एक बेसिक क्वेश्चन से करता हूं. अच्छा, ये बताएं कि C6 का जो रूट है वो कहाँ से बाहर निकलता है, कैसे निकलता है? What is the difference of exiting route of lumbar and cervical spine? Sir, in the lumbar, in the C5, between the C5 and C6, there is the C6. In the cervical. Exit कैसे होते हैं? Exit. Sir, ये जरा सीधा चलता है.
Yani, sir, and in the number, if there the exiting load L5 will be below the L5. देखिए C5-6 में कौन सा रूट इन्वॉल्व होगा? जी सर, C5-6 का डिस्क है, इसमें कौन सा रूट इन्वॉल्व होगा? C5 C6 का डिस्क है तो इसमें C6। अच्छा, और L4 L5 पे डिस्क है, उसमें कौन सा रूट इन्वॉल्व होगा? L4 L5 है सर, जी जी, तो L5 सर। अच्छा, इनकी दोनों दोनों इन्वॉल्व लोअर होती, लेकिन कैसे उनकी एग्जिट कैसे होती है? ट्रेवर्सिंग रूट सर। व्हाट इज द यस नहीं, जो एग्जिटिंग है सर, इसमें जो सर्वाइकल होता है इसमें एग्जिटिंग रूट इन्वॉल्व होता है, एंड इन द नंबर द ट्रेवर्सिंग रूट इज इन्वॉल्व। अच्छा, अगर तो फिर इसका आपका मतलब क्या है? अगर C5-6 में एग्जिटिंग कौन सा रूट होगा? C5 C6 में सर, जी जी, C5 C6 में C6 हाँ होगा सर, जी, C6 होगा, तो कहाँ C6 से होगा एग्जिट करता है? न्यूरल फोरामिना से। ओके मसूद साहब, आप जरा फर्दर करें यार, ये चलो बड़ा ठीक है। जी जी, नहीं ठीक है, जवाब तो इसने सही दिया, लेकिन और प्रिसीजन ठीक है। ठीक है, आपने कहा कि जी हाँ इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं आप, तो क्या स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे आप? The specific investigation, sir, I will go for the MRI cervical spine. ठीक है जी, हमारा सर्वाइकल स्पाइन लाए मरीज साहब, आपके पास है कोई पिक्चर है? ये सर MRI है। चलिए जनाब शाकिरुल्लाह साहब एमआरआई पढ़िए। Sir, I need further cut for full study. कौन सा कट चाहिए आपको? आप पहले Sir, इसको बताएं ना, exit. इस पे डिस्कशन करें, आपको फर्दर हम Okay, ठीक, okay, कौन sir. सा कट चाहिए आपको इसके अलावा? Axial cut, sir. ठीक है, चलिए इसको बताइए पहले आप। Sir, this is the T2 weighted MRI of the cervical spine, and there is the ठीक, क्या है hypointensity दोबारा बताइएगा, क्या है T2 वेटेड? T2 weighted MRI. अच्छा, तो आप एक्सियल मांग रहे थे ना, एक्सियल ही तो है ये। No, sir, it is sagittal. तो क्यों नहीं बोल रहे आप? ठीक है, चलिए आगे Okay. बढ़िए। It is, and there is the hypointense lesion at the C5 C6 level, which cause the compression of the thecal sac. And there is the cervical spine has straightening, and there is no any changes in the curve. नहीं है Sir, I can't appreciate it. There are some, but it is not so significant. ये डॉक्टर शाकिरुल्लाह जरा जोर से बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है, बहरहाल मुझे नहीं आ रही। ठीक है, अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट आपने कहा तो आपने यू लुक फॉर इट, सो दैट्स फाइन। अच्छा, तो क्या है फिर ये आपके ख्याल में? Most probable, sir, it is the C5 C6 disc. अच्छा, ये इन्होंने आपको एक्सियल भी दिखाया है ना? जी सर। अच्छा, C5 C6 डिस्क। अब इसमें एक्सियल में बताएं क्या हो रहा है? यस सर। इसको भी पढ़ दीजिए। This is the T2 weighted MRI of the axial cervical spine, and there is the herniation of the disc, mostly on the left side, and other the lamina and other lamina and spinous process, they are normal. ठीक है, तो क्या कर रही है ये ब्रेडिक? अच्छा, and it cause compression. ये नजर आ रहा है आपको मेरा पेन जो एक मार्क लगाया मैंने? ये क्या चीज है ये?
कौन सा सर? ये सर ये ट्रांसवर्स ब्रासिल कौन सा सर? ये हाँ ये यहाँ पे ट्रांसवर्स ब्रासिल है। ट्रांसवर्स ब्रासिल नहीं ये नहीं एक मिनट सॉरी नहीं ये नहीं। ये हाँ ये क्या है सर? दिस इज न्यूरल फोरामिना। न्यूरल फोरामेन है ये। मतलब न्यूरल फोरामेन किस चीज को बोलते हैं? व्हाट इज न्यूरल फोरामेन? किस चीज में होता है न्यूरल फोरामेन? बिटवीन द टू वर्टेब्रा। बोन है ये कह रहे हैं आप? बोन के अंदर फोरामेन है ये? जी सर। जो कि आपको एमआरआई पे बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ये कह रहे हैं आप एक्सियल कट में? अच्छा, कोई और है? कोई और सीनियर आपके हैं जो बताना पसंद करेंगे क्या चीज है ये? ये वाला जरा। ये वाला कौन सी वेसल है ये? वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी है, ये भी आपको देखनी है क्योंकि एसीडीएफ करने में आप ये फाड़ भी सकते हैं, ठीक है ना? तो खाली नर्व और काउट पे नहीं देखना होता है, जिंदगी के लिए ये आपको बता रहा हूँ ये कि कितने करीब है और कितने दूर है ये आपकी सर्जरी से। अच्छा जी, ठीक है। तो आपने कहा कि जी ये डिस्क है इसको और थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा यस सर। तो ठीक है, अब आप बताइए कि कैसे मैनेज करेंगे इसको आप? Sir, first I will give conservative treatment option to my patient. तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे आप? I will give the painkiller. कौन से पेनकिलर देंगे? Sir, I will do the NSAID to my patient. ठीक है, वेरी गुड। Okay. उसके बाद नहीं सही हो रहा, 3 महीने से तो ले रहा है वो NSAID, नहीं ठीक हुआ है। Then I will counsel the patient regarding the surgical option. What are the surgical option? Sir, ये जरा दोबारा पिक्चर लगा दीजिएगा इनकी, वो सजाइटल वाली। Sir, I need, sir, I also need the CT of this patient, so it will be better for, so that to see that there is the osteophytes. अच्छा ठीक है, ओके। यस। गरीब मरीज है ये, पैसे तो नहीं है इसके पास। आपके ख्याल में ऑस्टियोफाइट के कितने चांसेस है इसमें होने के? सर, the age is also less, so the chances are less. गुड। तो एमआरआई पे नहीं लगता है चांसेस आर लेस, लेकिन अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि सीटी स्कैन में और क्या ऑस्टियोफाइट्स आप देख रहे हैं, और क्या देखेंगे आप इसमें इसी पेशेंट में? I will check the bone of the patient, the vertebral. ठीक है, क्यों? Bone. If sir I am going for the interior approach, it will help me. तो फिर क्यों देखना चाहते हैं वर्टिब्रल बॉडी? इसमें क्या देखना चाहते हैं? Vertebral body and the sir, I will check that how is there is any osteophytes on the CT scan or not, and the vertebral body I will check that the bone condition, that it will help me to allow the plate and the screw. ठीक है जी मसूद साहब। ठीक है, फिर आप निकाल कंजर्वेटिव हो गया, फेल हो गया, व्हाट एल्स? Sir, this is I will go, I have different option, but I will prefer the posterior approach in this patient. Posterior approach, अच्छा क्यों posterior approach क्यों प्रेफर कर रहे हैं आप? Sir, there is a C6 radiculopathy, monoradiculopathy. So for the monoradiculopathy, the posterior keyhole foraminectomy is the best approach. फोरामेनोटमी। और डिस्क किधर है? जी सर। डिस्क किधर है? फोरामेन में? Sir, it is mostly in the central area, but mostly on the left side in the foramen. तो फिर ये जो है आप फोरामेनोटमी करेंगे तो ये सेंट्रल वाली डिस्क निकल आएगी वहां से?
या डिकम्प्रेस हो जाएगी? Sir, it will be a bit difficult, but अच्छा ठीक है, अब ये बताइए आप कि ये कब आप एंटीरियर करते हैं और कब पोस्टीरियर करते हैं? क्या yes, चीजें sir. देखते हैं आप एंटीरियर पोस्टीरियर करने के लिए? 2-3 चीजें. Sir, there What is the are benefit of doing from the posterior? What is the benefit from doing anterior? sir, if there is the pathology more than 3 level, तो so फिर I क्या will करते हैं go आप? posterior approach. And if there is the manoradiculopathy and patient is young, I will go for the posterior approach. What is कौन सी रेडिकुलोपैथी है अगर है तो? सॉरी, Manoradiculopathy. माइनर, Mano, एक ही, सिंगल लेवल. सिंगल. सिंगल लेवल रेडिकुलोपैथी है तो आदमी पीछे से जाता है चाहे उसकी डिस्क कहीं पे भी हो. जी सर. अच्छा, और क्या देखते हैं इसके अलावा? And the neck, if there is a large thyroid, so it will be difficult for me to go through क्या चीज? inferior approach. Or there is the neck deformity. डॉग डिफॉर्मिटी हो तो फिर क्या करते हैं आप? If there is a short neck, so it's quite difficult for me to go. वो तो ठीक है, इस पेशेंट में बताइए, इस पेशेंट में बताइए. In this patient, sir, sir, I told you that I will go through the posterior approach. इनको जिस सजाइटल दोबारा दिखाइए. And manoradiculopathy, single radiculopathy, sir. आपने कुछ इसे कर्वेचर के बारे में बताया था, क्या हो रहा है इसको? जी सर. If there is उसमें जी sir, there is some straightening of the cervical spine. तो Okay. वो उसमें क्या करते हैं जब आप? But usually on one level, keyhole foraminectomy, if I do find the section and it is less than 50% of the facial joint, I mean that more than 50% of the facial joint is intact. ठीक है, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे. सो अगर रिवर्सल ऑफ लॉर्डोसिस हो तो आप उसके लिए पीछे से करते हैं, और अगर सिंगल लेवल कुछ भी हो रहा हो तो भी आप पीछे से करते हैं. अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए. फिर आपने पीछे से करने का फैसला कर लिया इसको, लेकिन ये बताइए, फर्ज करें जी सर, कि अगर इसको आगे से कर रहे हैं आप फ्रंट से, सो व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन यू विल टेल द पेशेंट? Yes sir. Sir, there will be complication regarding trauma to the airway, trachea, esophagus, pharynx, to the carotid, to the vertebrae, to the sympathetic chain, and मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो मजदूर हूँ, ये आप मुझे बता रहे हैं क्या? सिंपैथेटिक चेन को हो जाएगा तो दैट्स फाइन, इट्स वेरी गुड. ये बताएंगे मरीज को अपने कि इसको सिंपैथेटिक चेन में प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें? No sir, I will tell him that there will be loss of sweating. ओके, और उसके अलावा फिर आगे चलिए. And ptosis open. Okay sir. And other complications, sir. Sir, and if I do for the plating or screw placement, so that can be dysphagia and trauma to the right recurrent nerve and dysphagia and hematoma formation and seroma formation. Okay, what else? And what is the most common problem? सबसे common problem क्या है? C-SIF leaks and C-SIF leak, and the most common problem respiratory distress sometimes there can happen. Most common problem क्या होती है ACDF के? Dysphagia sir. Swallowing problem. Oh. तो swallowing problem हो जाएगी तो डॉक्टर साहब क्या मुझे सारी जिंदगी रहेगी फिर क्या अगर हो जाती है? No sir, most of the time it is temporary. अच्छा, और इसके अलावा कुछ और बताएंगे आप? और कॉम्प्लिकेशन एक और नहीं बताई आपने. होर्सनेस भी हो गई, इसके अलावा? And स्पाइनल कॉर्ड पे काम कर रहे हैं आप. What will happen to that? Yes sir, trauma to the spinal cord. Yes sir, and trauma to the. What will happen to that then? मरीज को क्या होगा फिर? And the patient can develop neurology sir. अच्छा, आपने ऑपरेट कर दिया मरीज को और पोस्ट ऑपरेटिवली जो है आप वार्ड में गए हैं, मरीज को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट यू विल डू? जी सर. Sir, if there is I will first maintain the airway, breathing and circulation of the patient, and I will
I will shift the patient to the OT. Up there is the too much OT breathing में जो difficulty. I can open the wound at the bedside, ओके and I will call to OT. अच्छा ठीक है, चलिए आपका तो So मेरे ख्याल में that हो they गया है, prepare दैट्स for फाइन, the आई surgery डोंट थिंक सो आई हैव एनी मोर क्वेश्चन टू यू। intervention if required. अच्छा ये जो है और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप क्या करेंगे इसमें, इसको फोरामिनोटमी करेंगे या Hello, बशीर है या नहीं? hello sir. सर एसीडीएफ करूंगा सर। हाँ Hello, एसीडीएफ करेंगे। एसीडीएफ hello करेंगे sir. आप? ये कौन है, ये हेलो हेलो कौन है भाई? Hello sir. हेलो Hello, जी डॉक्टर शाकिरुल्लाह बोले। hello, जी बोले ना, बोले। hello sir. जी इसको जी आवाज नहीं जा रही लगता है। Hello. जी जी बोले। अच्छा कोई और बता देना, ये पीर साहब हैं, बशीर साहब हैं, शकील साहब हैं, आप लोग बताएं क्या बशीर साहब करना हैं क्या आप? है? बशीर है, उसके बशीर बाद साहब खामोश बैठे हैं सर बिल्कुल। सर ये एक लेवल पर Hello है, sir. तो इसमें हम एसीडीएफ करेंगे सर, एसीडीएफ करेंगे और एंटीरियर अप्रोच इसमें करेंगे। 2 लेवल्स तक हम एंटीरियरली। Hello sir. नहीं एक सेकंड, ये बताए ना आप कि ये जो आप कह रहे हैं एक लेवल Hello. पे एंटीरियर अप्रोच करेंगे, तो एक लेवल होना एंटीरियर अप्रोच करने नहीं की नहीं इंडिकेशन है Hello. या नहीं सर, what is the हम indication? 2 लेवल्स, हम सर 2 लेवल्स तक एंटीरियर अप्रोच कर सकते हैं। नहीं 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 मोर वो तो देन ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बात सही है आपकी। पैरा सेंट्रल रीजन में है तो उसकी वजह से डिस्क सेंटर पैरा सेंट्रल रीजन में ज्यादा। व्हेन यू डू द फ्रंट, व्हेन यू डू द बैक, दिस इज द क्वेश्चन। ओके सर, पेशेंट की में मल्टीपल लेवल पर डिस्क हो तो हम पोस्टीरियरली जाएंगे मोर देन 3 लेवल्स, और अगर वो 2 लेवल्स तक है तो हम एंटीरियरली जाएंगे सर। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। इस मरीज को ये जनरली एक लेवल की डिस्क है, व्हेन यू डू द फ्रंट, व्हेन यू डू द बैक, अगर प्रेशर फ्रंट पे है तो फ्रंट से करोगे, प्रेशर बैक से है तो बैक से करोगे। इसमें सर इसमें एंटीरियरली कंप्रेशन है तो हम एंटीरियरली आएंगे। मतलब दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट, लेकिन जनरली तो यही होता है ना, अगर फ्रंट से कंप्रेशन है तो फ्रंट से करोगे, बैक से है तो बैक से करोगे। राइट सर। ठीक है ना जी। और अगर ये रिवर्सल इसको लॉर्डोसिस है तो फिर क्या अप्रोच होगी तुम्हारी? अगर सर अगर रिवर्सल ऑफ डोर्सोसिस तो मैं एंटीरियर अप्रोच नहीं करूंगा, मैं पोस्टीरियरली करूंगा सर। पोस्टीरियरली करोगे, उल्टा नहीं कह रहे हो? लॉर्डोसिस खत्म हो गई है उसकी, जो नॉर्मल लॉर्डोसिस है। तो इस पेशेंट में भी लॉर्डोसिस खत्म हो गई है सर, लेकिन हम एंटीरियरली ही जाएंगे सर। ठीक है, इसमें तो इतनी नहीं है, लेकिन अगर कोई मरीज है जिसको आप पोस्टीरियरली अप्रोच करना चाह रहे हो लेकिन उसको रिवर्सल ऑफ लॉर्डोसिस है, नेक इज टिल्टिंग फॉरवर्ड, तो उसमें क्या करोगे? तो सर पोस्टीरियर डिकम्प्रेशन हम करेंगे, क्योंकि उसमें एंटीरियरली जाने से जो पोस्टीरियर कंप्रेशन लॉर्डोसिस की वजह से हो रही है वो फिर भी स्टिल परसिस्ट करेगी सर। ये आप क्वेश्चन पूछ ली, रिवर्स लॉर्डोसिस है इसमें, उस पे क्या करोगे? पेशेंट एक है, मैं उसको ऑपरेट करना चाह रहा हूँ और उसको रिवर्सल ऑफ लॉर्डोसिस है, डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू वेदर यू चूज द फ्रंट और बैक? यस सर, तो लॉर्डोसिस रिवर्स में पेशेंट गया है तो देन पेशेंट को हम पोस्टीरियरली अप्रोच करेंगे, ताकि पोस्टीरियरली अप्रोच करेंगे आप तो फिर उसका लॉर्डोसिस और खराब हो जाएगा। लेकिन वो कंप्रेशन भी तो कंप्रेशन है पेशेंट को, एंटीरियरली अगर हम करेंगे भी तो कंप्रेशन तो खत्म नहीं होगी पेशेंट की। नहीं नहीं, वो कंप्रेशन की बात ही नहीं की ना मैंने सिर्फ कहा कि लॉर्डोसिस रिवर्स देख के आप क्या रिवर्स कंप्रेशन अभी भूल जाए आपकी कंप्रेशन की तरफ, अगर सिर्फ रिवर्सल ऑफ लॉर्डोसिस है, डज इट मेक यू चूज टू गो फ्रॉम द फ्रंट और बैक? सर जो मुझे आता है वो यही है कि अगर रिवर्सल ज्यादा है तो हम पोस्टीरियरली जाएंगे सर। नहीं, गलत आप कह रहे हैं, रिवर्सल है। पेशेंट काइफोसिस में जा रहे हैं तो कैसे, अगर पोस्टीरियर करेंगे तो क्या होगा उसमें? जी सॉरी सर, आई कैन नॉट हियर यू। अच्छा ये बताइए, छोड़िए बशीर साहब, आप ये बताइए, एक पेशेंट है उसको काइफोसिस है, ठीक है? ओके सर। कंप्रेशन और कंप्रेशन सब भूल जाए, काइफोसिस है। काइफोसिस
उसकी मुझे करेक्ट करनी है काइफोसिस, किधर से मैं उसको वो करूंगा, जो है उसको मैं कोई बड़ा केज लगाऊंगा फ्रंट पे या फिर उसको मैं पीछे से खींचूंगा, क्या करूंगा काइफोसिस को अगर सही करनी है मुझे? तो सर अगर ये केफोटिक डिफॉर्मिटी है तो इसमें हम पोस्टीरियरली जाके उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे विद डिकम्प्रेशन स्क्रू एंड रोड सर। अच्छा चलो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। देखो अगर तो उसको खाली तुम डिकम्प्रेशन कर दोगे तो वो तो और गिर जाएगा, क्योंकि आपने लिगामेंट पीछे से जो है, जो होल्डिंग टेंशन बैंड्स हैं वो सारे तोड़ दिए हैं, तो इट विल काइफोज मोर ओनली। यस यू आर राइट। तो जो है अगर फ्रंट एंड बैक की सर्जरी की बात है तो फिर काइफोसिस में आप फ्रंट से सर्जरी करेंगे और केज डालेंगे ताकि उसकी काइफोसिस बिल्ड हो, ठीक है ना? लेकिन अगर आप बैक से कर रहे हैं so then you have to put screws and rods. Yes sir. अगर आपको करना ही है तो to stop it getting further kyphosis. Yes sir. ठीक है, मेरे ख्याल में हमने काफी टाइम दे दिया आज। लाल साहब अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो बताइए, या फिर इनका फिर हम असेसमेंट करते हैं इनका, शाकिरुल्लाह साहब का। ठीक है, आज तो काफी बेहतर था। मैं इसका जो एक्सियल कट है, एक मिनट। अच्छा डॉक्टर शाकिर साहब, इसमें मुझे जरा स्टेप्स जल्दी से बता दें प्लीज, इंटीरियर अप्रोच के। Interior approach, sir. First, I will put the patient in the supine position, and I need the microscope, and I need the fluoroscopy, and then I will do the I will give the incision, and according to the level. So this is the C6. सुन ले, ये C5 C6 पे है, जी तो सर। इंसिजन कहाँ मार्क करोगे और कैसे मार्क करेंगे इंसिजन? आप फ्लोरोस्कोप शुरू में नहीं है, बाद में आप लाना चाहते हैं, तो कोई और लैंडमार्क्स है जिसके क्रिकाइड? यस सर, क्रिकाइड। क्रिकाइड क्या? क्रिकाइड। व्हाट इज क्रिकाइड? कार्टिलेज सर, क्रिकाइड कार्टिलेज। कोई और चीज है जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि यार ये मेरा लेवल ठीक हो रहा है? सर देयर आर द level that is one for the C2 C3, so that is the श्याम नहीं है, श्याम बगैर शुरू में, अब श्याम बाद में आ रहा है ना? जी सर। C6 पे कोई निशानी है जिसको which can help you? सॉरी सर। ओके, अच्छा फिर आगे क्या करेंगे? Then I will extend the neck of the patient. I will, sorry sir, after the incision, I will do the subcutaneous dissection, and I will I will give the incision to the platysma, and I will retract the sternocleidomastoid muscle and the carotid laterally. अच्छा ये C5-6 पे है ना, तो राइट पे जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे, किधर जाएंगे आप? Sir, on the right. Sir, sir, sorry sir. I will approach from the right side. From the right side. Why from the right? Okay, अगर रास्ते में आपको ओमोहाइड मसल आ जाए सपोज, तो क्या करेंगे उससे? I can cut it, I can coagulate it, and I will retract it medially. जी. And I will retract the omohyoid and the trachea esophagus medially, and then. Okay, आप यहाँ पे पहुँच गए, इधर आप बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गए ना, यहाँ पे. जी सर. आप इधर पहुँच गए, अब क्या करोगे? Then there will be prevertebral fascia, sir. फिर? And I will confirm my level again with the fluoroscopy. If it is, I have not done. And then I will coagulate the prevertebral fascia and the longus colli muscle, and I will retract it laterally. So, longus colli को coagulate करोगे? Sir, I can cut it. I will retract it, sir. Sorry. Okay, retract कैसे करोगे? और कितना retract करेंगे? ओके, अब यहाँ पे है, आपने longus colli को retract कर दिया. जी सर. फिर क्या करोगे? जी सर.
अगर आप ज्यादा रिट्रैक्ट करेंगे तो क्या नुकसान होगा? Sympathetic chain, sir, can damage. ओके, फिर आगे क्या करेंगे आप? अपनी रिट्रैक्ट कर दिया, अपनी लिगामेंट भी ले चुके हैं, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, फिर क्या करोगे? And then I will remove the disc, sir. I will give the cut to the disc by the blade, 15 size blade. अच्छा, आप यहाँ तक पहुँच गए इधर तक, बिल्कुल। अब क्या करोगे? Then I will give cut to the posterior longitudinal ligament. मैंने उससे पहले कुछ करो कि नहीं पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूड? और व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ रिसेक्शन ऑफ पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट? क्या आप हर केस में करेंगे या कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, और कब करेंगे? Sir, I will check that the compression, the interior. इसमें आपकी लेटरल लिमिटेशंस क्या है? कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक नहीं जाओगे? Lateral limitation, sir. From midline, I should go up to the 8 millimeter, not more than 8 millimeter. 8 मिलीमीटर? तो ये तो तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर हो गया। But that is for जी सर। अच्छा, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लैंडमार्क्स हैं जिसको आप शो करते हैं कि भाई मुझे अभी लेटरली नहीं जाना। कोई ऐसी चीजें हैं जो From the midline, sir. Face joint, sir. Face, sorry. यहाँ पे एक जॉइंट भी होती है, एक जॉइंट होती है जो अनकोवर्टिबल जॉइंट। नहीं, आपने बताया ना उसका होगा जी। Unconvertible joint, sir. आपने यहाँ पे डिस्क रिमूव कर दी, फिर क्या करोगे? And I will check that the neuroforamina is decompressed or not. So how you will check that? With the nerve retractor. Okay, and what you will do with the osteophytes? If there is osteophytes, sir, I will try to remove the osteophytes. कैसे रिमूव करेंगे आप? But if there is the chances of the dural tear, नहीं, how you will remove the osteophytes? Osteophytes कैसे रिमूव करेंगे आप? Sir, with the pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये मसूद साहब, अभी आपको अपना जरा बताएं, आपकी इंप्रेशन दिए सर, बताएं आप। सर ये मेरे ख्याल में इसको हो गया, आज के लिए काफी है इनके लिए। इन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू हिस्ट्री अच्छी ली और सारे स्टेप जो हैं ट्राई टू कवर किया इन्होंने। अच्छी बात ये है कि जो फॉर्मेट है ही फॉलोड दैट। इन्होंने सब चीजें जो है ना कि जी ओवरव्यू और असेसमेंट और हर चीज अच्छी की है। लेकिन एक जो थोड़ी प्रॉब्लम थी इनके साथ, मेरे ख्याल में इनको रेडिकुलोपैथी का पता था, तो ही वाज स्टक, इनका माइंड थोड़ा सा उधर ही फिक्स था। डिफरेंशियल इन्होंने हिस्ट्री में नहीं करी, क्योंकि हिस्ट्री में इन्होंने मायोटोम या डर्माटोम इवैल्यूएट करने की कोशिश नहीं करी, सो दैट वाज द प्रॉब्लम ऑलवेज। ACDF के बारे में मेरे ख्याल में जो मुझे इम्प्रेशन पड़ा एज एग्जामिनर कि इन्होंने ACDF सर्जरी देखी नहीं है, या अगर इनको मैं दे दूं करने के लिए तो ही कांट डू इट बाय हिमसेल्फ, क्योंकि इनको बहुत सारी बेसिक चीज़ों का पता ही नहीं है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि कुछ ACDF 2, 3, 4 अपने यूनिट में या कहीं और कहीं पे हो रही हो तो वो जाके देखें, सो दैट विल बी ऑफ हेल्प। ये मेरी तरफ से सारा ठीक है सर। यानी मेरे ख्याल में जिसका लॉन्ग के सर्वाइकल डिस्क आ जाए एग्जाम में तो देयर आर मोर देन 80% चांसेस को पास हो जाएगा, क्योंकि सीधा सादा है, हर यूनिट में होता है, लोग सारे पढ़ते हैं, इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, और ठीक है, आज का काफ़ी अच्छा था उसका, यानी इसको आज हम मेरे ख्याल में बॉर्डर लाइन पास करेंगे। सर क्या ख्याल है? मैं बॉर्डर लाइन फेल करूंगा, मैं बॉर्डर लाइन, क्योंकि रीजन इज दैट कि आपने जैसे कहा कि जी ACDF में पास होना चाहिए, तो अगर इसको अगर मैं कोई इंट्रामेड्यूलरी ट्यूमर या कोई और चीज दे देता, सीवे जंक्शन का ट्यूमर, और उसमें ये पुअर परफॉर्मेंस करता, देन आई कुड हैव पास्ड हिम। लेकिन सर्वाइकल डिस्क में अगर आपकी अंडर परफॉर्मेंस है, एक चीजें आप मिस कर रहे हैं, देन चांसेस ऑफ फेलियर विल बी वेरी हाई।
तो अगर डॉक्टर लालिमा मैं भी फेल ही करूंगी। आप हिस्ट्री इतनी वीक है आपकी, डिफरेंशियल एक्सक्लूड नहीं की, आइडिया नहीं है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ट्यूबरक्लोसिस या डिजेनरेटिव डिजीज। वो ठीक है, लेकिन भाई पिछले 5-6-7 लॉन्ग केस में सबको हम फेल कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है ना चले फिर सही है, चलो मैंने भी पास कर दिया फिर। चलें जी, 2 और 1 का वोट हो गया। अच्छा, इस देखिए स्पाइन में पता क्या चीज है, ट्रॉमा पूछना जरूर चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं, इन्फेक्शन है, डिजेनरेटिव है, ट्यूमर्स हैं स्पाइनल कॉर्ड की, बोन के, हर एक कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपने पूछने हैं। और वो अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ कि स्पाइन में 3 चीजें हैं, स्पाइन है, लिम्स है, स्फिंक्टर्स है। भाई स्पाइन में दर्द होता है, उसको जरा सही दर्द के जो क्वेश्चन है मैं बताऊं आपको, हमारे मेनली पेन है ना, उस क्वेश्चन आप लोग लिख ले और इनको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आप पूछने चाहिए। फिर लिम्स में 2 चीजें हैं। पेन की यही मुझे शिकायत है इनसे कि जब उसने कहा कि नेक पेन है, तो नेक्स्ट सवाल इनका होना चाहिए था जी, पेन आर्म में जाता है कि नहीं जाता और किधर जाता है आर्म में। दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन। सर अगर देखें तो हमारे स्पाइन में मेन जो चीफ कंप्लेंट हो, जो मेन कंप्लेंट आपको पेन है। और ये लोग जो ना पेन को तो आप ऐसा करें कि भाई जिसके मुंह से पेन निकले तो आपके पास 15-20 क्वेश्चन हो जो इंपॉर्टेंट चीजें आप सब जो है ना किस तरीके से उसे उगलवाएं। फिर लिम्फ में 2 बड़ी चीजें, एक मोटर सिस्टम, एक सेंसिटिव सिस्टम है, तो आप इनको हर चीज पूछ लें। तो ये चीजें हैं। दूसरे एग्जामिनेशन पे भाई स्पाइन की जो अपनी एग्जामिनेशन है उसमें टेंडरनेस काफी आप जो दे रही हैं, उसके मूवमेंट्स हैं। फिर लिम्स पे आ जाओ, जिस तरह आपसे बड़ी मुश्किल से चीजें उगलवाई जा रही थी कि भाई फला रूट खान पे कभी आप एक तरफ बता रहे, कभी दूसरी तरफ बता रहे। दूसरे जो बेसिक्स हैं कि भाई एग्जिट कैसे होती है रूट की, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट प्रॉपरली। फिर इन्वेस्टिगेशन पे भी भाई आपको, यानी एमआरआई जब लग जाए तो खुदा के लिए एमआरआई पे, आपने बोन पे, आपने डिस्क पे, आपने स्पाइनल कॉर्ड पे, अपने रूट्स पे, हर चीज पे आपने बिल्कुल एक कंसेप्ट बनाना है। ये कॉमन चीज आपसे पूछेगा कि भाई ये क्या चीज है, तो यू आर नॉट एबल टू टेल इट। हालांकि ये तो मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर वालों को पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। फिर जब ट्रीटमेंट आपने फोरम एनाटॉमी सर्वाइकल डिस्क के लिए कितनी की है, आपके वार्ड में कितनी हो रही है? फोरम एनाटॉमी मेरे ख्याल में 1 साल में भी नहीं होती, 2 साल में भी नहीं होती। तो व्हाई नॉट डायरेक्टली कंप्रेशन इंटीरियर से आ जाए, और फिर आपको स्टेप्स सारे आने चाहिए। स्टेप्स में मैं देख रहा था यू आर नॉट एबल टू डू इट। जिस तरह महसूस आप बता रहे थे कि लगता है कि आप लोगों ने केसेस देखे नहीं है। बाकी कॉम्प्लिकेशन जिस तरह, तो कॉम्प्लिकेशन अंदर से स्टार्ट करें, स्पाइनल कॉर्ड है, ट्यूबर है, रूट्स हैं, फिर साइड पे वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, और ऊपर आते जाए फिर कैरोटिड शीथ है, फिर ट्रेकियोएसोफेगस है, लैरिंजियल है, और आते जाए ऊपर। आपसे कुछ चीज मिस नहीं होगी। एनी हाउ इसमें यानी पास तो नहीं थे, लेकिन चलो हम आपको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। सर्वाइकल डिस्क मेरे ख्याल में यानी इट इज सो इम्पोर्टेंट एग्जाम में, और हम ये जो लॉन्ग केस कर रहे हैं, हमने वो चीज कर रहे हैं जो आते हैं अक्सर एग्जाम में। तो आप लोग आज जाके दोबारा पढ़ लें सर्वाइकल डिस्क को, डिटेल से पढ़ें। जो क्वेश्चन मसूद साहब ने की, जो क्वेश्चन मैंने की, यही एग्जाम के क्वेश्चन है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही है। इसमें आप कहाँ से, दूसरा क्वेश्चन कहाँ से करेगा? अच्छा, जो डॉक्टर मसूद पूछ रहे थे आप लोगों से बार बार, ये जो मुख्तलिफ डर्मेटोम्स मुख्तलिफ, तो मैं बताऊँ आपको, ये हर एग्जाम में पूछ जाता है कि फलां डर्मेटोम कहाँ पे होता है। 1 मसल के नाम, उनके रूट वैल्यू जो करते हो, जो मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं जिसमें आप रिफ्लेक्स चेक करते हैं, आप जॉइंट की मूवमेंट चेक करते हैं, हर रिफ्लेक्स का आपको रूट वैल्यू का और मसल जो इन्वॉल्व है उसका पता होना चाहिए। मैं बताऊँ आपको, खासकर हैंड्स में जो है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आते ना, ये तो बिल्कुल मैथ्स क्वेश्चन है। आपने सही बताया तो नंबर मिलेंगे, आपने गलत बताया तो इसमें दूसरा यानी आप एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं चाहते। C5 की जगह पर आपने C6 बताया तो बस आप गए। तो ये चीजें हैं काफी। ये आज का जो लॉन्ग केस था, रियली यानी आप 4-5 लोग जो एग्जाम में हैं, इनमें से किसी ने एक का जरूर होगा लॉन्ग केस सर्वाइकल डिस्क। तो इसको सही पढ़ लें, और कल के लिए हम आपको सीनियर देंगे, कल नहीं परसों के लिए, और फिर इंशाल्लाह देखते हैं, आपको बता देंगे। ठीक है, आप इतना टाइम दिया हमें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू आपका, शुक्रिया। अल्लाह। लॉन्ग केस कौन करेगा? लॉन्ग केस कौन करना चाहते हैं? सर कोई नहीं करता तो मैं कर लूंगा। ठीक है, आप करिए, आपको हम दे देंगे। ठीक है, अभी बनाते हैं, फिर आपको भिजवाते हैं। जी सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।